नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन विधेयक पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है इस विधेयक का विरोध करने वाली पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी और उसके महासचिव राहुल गांधी से जुड़ी हुई। खबर है कि कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जल्द ही भारत की नागरिकता खो सकते हैं। जी हां, इस बात का खुलासा बीजेपी के सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है। दरअसल सोनिया और राहुल के साथ गांधी परिवार के बारे में वक्त वक्त पर नए खुलासे करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बार जो खुलासा किया है वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही सोनिया और राहुल दोनों के लिए ही परेशान करने वाला है। स्वामी पहले भी सोनिया को लेकर कई खुलासे कर चुके हैं। उनकी माने तो सोनिया गांधी 5वीं तक ही पढ़ी है, लेकिन वो हार्वर्ड से पढ़ी हुई बताती है। अब हैदराबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक सेमिनार में बोलते हुए स्वामी ने ऐसा खुलासा कर दिया है जो भारतीय राजनीति में भूचाल ला सकता है। यहां भाषण देते वक्त स्वामी ने कहा कि फाइल गृह मंत्री अमित शाह की टेबल पर पड़ी है और जल्द ही सोनिया और राहुल अपनी नागरिकता खो देंगे। संविधान को कोट करते हुए स्वामी ने अपने भाषण में कहा कि भारतीय नागरिक होने के दौरान दूसरे देश की नागरिकता लेने वाले लोग खुद ही अपनी नागरिकता खो देते हैं। स्वामी ने दावा किया है कि राहुल गांधी ने इंग्लैंड में बिजनेस शुरू करने के लिए वहां की नागरिकता ली है, यानी कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक भी है, इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता खतरे में है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी भारतीय नागरिकता के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं क्योंकि उनके पिता राजीव गांधी एक भारतीय थे, लेकिन वे उनकी मां सोनिया गांधी की साख का इस्तेमाल करते हुए आवेदन नहीं कर सकते क्योंकि वे भारतीय नागरिक नहीं थी। इससे पहले हैदराबाद के एक सेमिनार में बोलते हुए स्वामी ने सीएए को लेकर हो रहे विरोध पर सवाल उठाया था और कहा था कि जिस देश में पारसी अल्पसंख्यकों को कोई डर नहीं लग रहा है तो फिर मुस्लिम क्यों डरे हुए हैं। This country is indestructible. This country has a long history. The UNESCO listed 46 countries, 46 civilizations. The Greek civilization, the Italian, the Roman civilization, the Egyptian civilization, the Mesopotamia, Babylon, all these 46. And what did they find? 45 have disappeared. Only one is still continuing, the Hindu civilization of India. India is a continuing civilization. And if people came to this country without the intention to attack us, we have been most hospitable. Look at the Parsis in our country. Does anybody grudge them anything? They are in every place. The Chief Justice was a Parsi, Commander-in-Chief Manekshaw was a Parsi, the Fali Major, there was the Air Force Chief, our Attorney General Soli Sarabji. We have Parsis everywhere, but nobody says anything to them. Because they came here in peace, they wanted sanctuary because their country, Iran, was overrun by the Islamic forces, so they came for protection. The Jews, they were persecuted everywhere, brutally. But they came to India. We built them their synagogues in Cochin and in Bombay. And when Israel was formed, many of the Jews went back. But the Israeli parliament passed, after adopting its constitution, passed its first resolution. And it was said what? Thank you, India, the only country where the Jews were not persecuted. Our Hindu religion does not deny other religions. It says all religions lead to God. Is there any other religion in the world which says that? By Hindu I include, of course, Buddhist. If you go to our constitution and read Article 25, it defines Hindu. Hindu is someone who is not a Muslim or a Christian. I didn't define it, it's the founding fathers who defined it. So, because Buddhists say the same thing, of course in a different format, the Sikhs say the same thing, and the Jains say the same thing, and therefore we consider them as a part of the Hindu, because the Hindus also have Sanatana Dharma, we have Arya Samaj, we have so many schools. We don't have one God,
We don't have one masjid or one like Makkah or Vatican. We have numerous temples. Temples are coming even in your backyards. जाहिर है स्वामी ने जो खुलासा किया है उसके बाद इस पर जमकर राजनीति होनी तय है। देखना होगा कांग्रेस और सोनिया की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। आपको क्या लगता है सुब्रमण्यम स्वामी ने जो खुलासा किया है उसमें क्या कोई दम है और क्या वाकई में राहुल और सोनिया की नागरिकता जा सकती है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।